Yeah, hello. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, hi everyone. So basically, today after a long discussion with some of the aspirants, those who are facing the problem of, answer writing or revision plans. So, some of us have got together, like we had a long discussion with the Sanvas sir, Dhruv sir, regarding how to, help the students. At this point of time, basically, this is the month. These are the months where we have to prepare our public administration. So, this is the time that you can prepare mains very well and prepare the content, all the engagement part that those are which are required. So those aspects could be done at this point of time. So we had planned we have designed all the course in such a manner that you will get to know about all the thorough concepts, all the concepts which are important from the exam perspective. Basically, problem what happens, we have bulkier notes, we have a lot of reference books, so it becomes sometimes too complex to revise all the things in the mains exam. Sir will Sanvas sir and Dhruv sir will be sharing all the aspect. We have also a lot of experience regarding the how the what are the problems that we face normally in the mains exam. So normally whatever content we have, we are not able to reproduce it, or we are not able to mold those content into your answer format. So those are the difficulty, and many times it becomes very difficult to segregate what is important and what is not important from the exam perspective. So our entire course is planned in such a way that you will be able to segregate what are relevant in the current exam trend. Basically, there has been a lot of pattern changes in the UPSC mains exam. So we will be emphasizing on those aspect of topics which are important at from the mains perspective, and those who are from important for the academic perspective. Normally, if you join any foundation class, you get to know the academic background of the subject, the academic understanding of the subject is in this. You also have the understanding of all the questions, PYQ questions which are being asked. Yeah. So we will try to look at those aspects also. Yeah, others can mute the camera. Yeah. Sir, Sanvas sir is with us. Good evening, sir. And Good evening. yeah, aspirants are waiting for you. So he has been all India PubMed topper in the last 2022 mains. So he has tried to analyze the pattern, how you can score good marks in the especially in the public administration. So sir will be taking you through the marks maximization strategy. What should you do? How you should plan your preparation? What should be the what are the common mistakes that normally we do in the mains exam? So those are the aspects that sir will be dealing in detail. And then we'll also have at the last, in the last phase of our discussion, we'll make you go through the entire curriculum. What are the discussions we'll be taking during the course? Yeah, Sanvas sir, you can take the. Am I audible? Yes sir, you're on. Okay. First of all, I will talk about my earlier attempt. I took commerce as my optional and wrote 3 mains. I never got good marks in commerce. Okay, how many of you are comfortable in Hindi also? Is it okay if I speak in Hindi and English both? Yeah, are you all Yes, comfortable? Or is there yes, anyone yes, who? sir. Okay. I think Okay, Sanvas sir, I think all English can be used. okay, Yes. I can. For the first time, I'm taking class online. Now that is why. See, I gave 3 mains from commerce and accountancy optional. I never got good marks. And then I realized that since I am from commerce background, मैंने +2 भी कॉमर्स से किया है, मैंने ग्रेजुएशन भी कॉमर्स से किया, फिर मैंने MBA फाइनेंस किया. तो आफ्टर 7 years ऑफ स्टडी मैं मेंस दिया 3 times. मैं कभी 200 क्रॉस नहीं कर पाया. तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि हमको लगता है कि हमें एक्सपर्ट होना है सब्जेक्ट में, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6 month पहले ही लिया था, और मैंने यूपीएससी में भी 303 मिला मुझे, और आसाम पीसीएस में भी 300 मिला, और आसाम पीसीएस में पेपर 2 में मुझे 175 मिला, जो यहाँ पे कभी नहीं मिला था 175. तो मैं कुछ आपको बताऊंगा
जो मैं प्रीवियस अटेम्प्ट में नहीं किया, जिसको आप लोग भी मत कीजिए। जैसे कि मैंने इतने सारे कॉमर्स के बुक पढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि पूरा सिलेबस मुझे आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। वो जो लोग पेपर चेक करता है, उन लोगों को they only know what you are writing in the book or in the paper only. So the best thing to prepare for any optional is that आप लोगों के पास नोट्स होना चाहिए, और नोट्स को एकदम कंसाइज होना चाहिए। मुझे लगता है 3 to 4 नोटबुक में आपके पास सारे चीजें होने चाहिए। मैं सुन रहे हैं लोग ना? Yes, sir. ओके ओके। तो मुझे लगता है कि 2 to 3 नोटबुक आप लोग प्रिपेयर कीजिए। उसमें आपके सारे नोट्स होना चाहिए, जैसे यूनिट वाइज आपको प्रिपेयर करना है। तो जैसे कि पेपर 2 जो है आपका, पेपर 2 में जितने भी यूनिट है, फर्स्ट आप जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, तो हर यूनिट में आपके पास 2 एग्जाम्पल्स होना चाहिए एवरी यूनिट में। वो क्वेश्चन में अगर नहीं भी आए वो एग्जाम्पल, लेकिन आपको वो लिखना ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे बोलता हूँ, जुडिशियरी में एक बहुत बड़ा इशू है कि केसेस बहुत पेंडिंग है। उसको सॉल्व करने के लिए हमें मिनिमम वर्क डेज असाइन होना है। तो स्लोवाकिया एक कंट्री है जहाँ पे 60 डेज के अंदर में जस्टिस को डिस्पेंस करना होता है। तो ये एग्जाम्पल आप अगर उसमें डालेंगे तो ये बहुत अच्छा दिखेगा। और जब भी राइटिंग अच्छा करने के लिए आप लोग क्या कीजिए, जैसे जो भी कोई द हिंदू पढ़ते होंगे, कुछ लोग द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे। मुझे लगता है द हिंदू में जो 3 आर्टिकल आता है द हिंदू एडिटोरियल में, उस तीनों को आप पढ़ के, एक ही बार पढ़ के उसके नीचे लिखिए कि आपने कितना पॉइंट वहां से गेन किया। तो आप जो तीनों आर्टिकल को ऐसे पढ़ेंगे और उसी के नीचे लिखेंगे और लिख के थ्रो कर देना। नोट्स प्रिपेयर नहीं करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए न्यूज़पेपर से। आप बस पढ़िए तीनों आर्टिकल, उसके नीचे लिखिए आपने कितना गेन किया। और फिर इस टाइप का अगर आप लोग 2-3 मंथ्स ऐसे फॉलो करेंगे तो आपका करंट अफेयर भी अच्छा हो जाएगा, आपका एक आइडियाज डेवलप होगा, आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा, और कोई एक्स्ट्रा आपको जीएस भी अच्छा होगा। तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है एडिटोरियल। कोई भी अगर आप द हिंदू भी पढ़ते हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं, उन तीनों एडिटोरियल को पढ़िए और उसका जिस्ट वहीं पे लिखने का कोशिश कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। ये इससे राइटिंग बहुत अच्छा होगा। और पेपर 2 में कमांड लाने का कोशिश कीजिए। पेपर 2 में अगर कमांड आएगा, आप पिछला क्वेश्चन पेपर 23 का भी देख सकते हैं, 22 का भी देख सकते हैं। उसमें मोस्टली पेपर 2 में ही, पेपर 1 में भी पेपर 2 का ही क्वेश्चन ज्यादा है। और अगर आप पेपर 2 में कमांड आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो आप यूनिट वाइज बनाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा आपके पास होना है। आप कोई भी यूनिट पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने जुडिशियरी का एक यूनिट पढ़ा, तो पिछले के लिए क्या? हाँ? हेलो, Yeah, others can mute, है ना? Once you are, yes sir, I think you can स्टार्ट। continue. ओके ओके ओके। जैसे आपने जुडिशियरी का एक यूनिट पढ़ा, तो उससे रिलेटेड जो भी ये सिर्फ आपको मेंस के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही नहीं, प्रीलिम्स के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कमांड होना पड़ेगा। अगर आप यूनिट 10 यूनिट है पेपर 2 में, तो एवरी यूनिट का 5 क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर से लिखना है आपको, और वही क्वेश्चन रिपीट होगा। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि कुछ नया आया। मुझे लगता है 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ के मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मैं सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था, तो वहां मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, जो लोग रीडिंग करने नहीं जानते हैं, वो लोग भी इंग्लिश का बेसिस पे सीजीएल निकाला होता है। लाइट चल वो रहा है? इसलिए निकाल हेलो, आप नहीं बोल रहे? क्या मैं बोलूं? Yes sir, please continue. I think कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं बीच में ना। ओके ओके। तो अच्छा, मैं बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे फर्स्ट पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था, वो सीजीएल के थ्रू मुझे मिला था।
तो उसमें मैंने बहुत सारे लोगों से मिला जिन लोगों को एप्लीकेशन लिखना भी नहीं आता था। और सीजीएल मोस्टली मैथ्स और इंग्लिश का बेसिस पे एग्जाम होता है। जिन लोगों को एप्लीकेशन भी लिखना नहीं आता था वो भी बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे थे। तब मुझे समझ में आया वो लोग क्या करते थे, वो लोग इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन वो लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसको पूरा ऐसा पढ़ा होता था कि कहीं से भी क्वेश्चन आए वो लिख देंगे। यही होल्ड ट्रूथ होता है सारे एग्जाम का। आपके पास लोगों का नंबर नहीं आता है इसलिए, या प्रीलिम्स निकालना मुश्किल होता है इसलिए कि वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड नहीं होते। मैं आपको बोलता हूँ अगर आप 2025 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कमांड कर लिया तो आपका मेंस भी होगा, आपका प्रीलिम्स भी होगा, आपका सब होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर कलेक्ट या मटेरियल कलेक्ट करने के अलावा आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। और हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज अपने वॉल पे भी चिपका ले, ताकि आपको पता चले कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो जब मेंस देने जाएंगे तो लगेगा कि वही क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूँ। मुझे कोई नया नहीं लगा था क्वेश्चन, मैंने 22 में जब लिखा था मुझे लग रहा था ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो लोग बोलते हैं कि करंट के बेसिस पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। आपको पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ जो मैं आज लिख के लाया हूँ। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो यूनिक कोई एग्जाम्पल मिले वो आपको रख लेना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। हम लोग ऐसे डिबेट कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, ताकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जायंट बने, ताकि जॉब क्रिएशन हो। लेकिन मैं एक रघुराम राजन का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें उसने बोला कि मेक इन इंडिया नहीं होना चाहिए। मेक इन इंडिया होने के लिए हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनना पड़ेगा। और हम लोगों को इस प्रोडक्ट को सेल पूरे वर्ल्ड वाइड करना पड़ेगा, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह बेचना पड़ेगा। और वो सब मार्केट ऑलरेडी फ्लडेड विद चाइनीज प्रोडक्ट है। तो वर्ल्ड के पास स्कोप ही नहीं है कि एक और मैन्युफैक्चरिंग जायंट को वो लोग एब्जॉर्ब कर पाए। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनने का ये है कि बहुत ज्यादा एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसके लिए इंडस्ट्री बैठाना पड़ता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग को मेक फॉर इंडिया करना चाहिए, इंडियन लोगों के लिए ही प्रोडक्ट बनाना चाहिए। और ताकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी इम्प्रूव हो और हमें नया मार्केट का तलाश नहीं करना पड़े। तो मेरा कहना यह है कोई भी यूनिक एग्जाम्पल मिले तो आपको वो नोट कर लेना है जो सबको नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल एक और, जैसे मैंने पवन सर के क्लास में भी लिया था, तो मैंने बोला था कि इंडिया का जितना भी अचीवमेंट है इंडिपेंडेंस के बाद वो मोस्टली नॉन आईएएस ऑफिसर लोगों ने हेड किया है। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, वो एमएस स्वामीनाथन ने हेड किया है। जैसे कि व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन ने हेड किया है। जैसे आईटी रिवोल्यूशन में सैम पिट्रोडा ने हेड किया है। जैसे मेट्रो रिवोल्यूशन और कोंकण रेलवे, ये सब ई श्रीधरन ने बनाया है। तो जो भी अचीवमेंट है, डेवलपमेंटल अचीवमेंट इंडिपेंडेंस के बाद, वो मोस्टली नॉन आईएएस ऑफिसर लोगों ने किया है। ये बताता है कि आईएएस जनरलिस्ट लोग जो होता है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, यही दो काम को अच्छे से करता है। बाकी जो डेवलपमेंटल काम होता है वो नॉन आईएएस ऑफिसर लोग ज्यादा अच्छा से करते हैं। जैसे कि इलेक्शन कंडक्ट कराना, इस वाइड स्केल में ह्यूमन हिस्ट्री में कहीं पे भी नहीं हुआ है जो ये आईएएस ऑफिसर लोगों ने इंडिया में इलेक्शन फ्री एंड फेयर, टू एन लार्ज एक्सटेंट फ्री एंड फेयर कराया है। तो इस टाइप का, तो इसको आप कहाँ पे डाल सकते हैं? ये स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट के डिबेट में डाल सकते हैं। तो यूनिक एग्जाम्पल को तलाश कीजिए जब भी न्यूज़पेपर पढ़े, तो उसको आप देंगे तो आंसर अच्छा लगता है। और एक और बात, आप पेपर वन को पेपर टू से लिंक करना, पेपर टू को पेपर वन से लिंक करना, ये बहुत बेकार की बातें हैं। मैं 2 मेंस दिया, दोनों में मैंने टॉप किया। पेपर वन को ना मैं कभी पेपर टू से लिंक किया, ना पेपर टू को ना पेपर वन से लिंक किया। आपको क्या करना चाहिए? जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको मीट करने का कोशिश करना चाहिए। अननेसेसरी आंसर को खराब करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर पूछा है द सिग्निफिकेंस व्हाई सिटीजन चार्टर इज नीडेड, तो व्हाई सिटीजन चार्टर इज नीडेड ही लिखना है। अब कोई एक थ्योरी, लिंकिंग, पिन मॉडल यहाँ से लाओ वहां लिखो, अच्छा नहीं लगता है। मैंने 100 से ज्यादा पेपर चेक किए हैं इस बार। मुझे आंसर मोस्टली ये लगता है कि आर्टिफिशियल आंसर है। नेचुरल लिखिए, जो आता है वो लिखिए। और मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि
इंडिया में IITs एंड IIM में 3 to 4% गर्ल्स लोग हैं। इंडिया में SSC CGL में मैं 4-5 बार निकाला हूँ इसको, तो इसमें भी 3 to 4% लड़की लोग हैं। लेकिन यूपीएससी में ऑलमोस्ट 30% है। वो इसलिए है क्योंकि वो लोग इतना नीट एंड क्लीन अपना नोट्स प्रिपेयर करता है, उसी नोट्स को ले जाके रख देता है। हैंड राइटिंग थोड़ा ठीक करने का कोशिश कीजिए, पर हैंड राइटिंग का कोई इशू नहीं है, अगर आपका खराब भी है तब भी वो लोग चेक कर लेगा। तो ये सब कीजिए, थोड़ा नोट्स प्रिपेयर कीजिए और जितना कंसाइज कर सकता है उतना कीजिए, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रियल सब्जेक्ट नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंस का एक ब्रांच था जिसको बाद में एक सब्जेक्ट बनाया। अभी भी इंडिया में 2-3 जगह से ही ग्रेजुएशन होता है। तो मुझे लगता है कि 3 से 4 में आपको नोट्स बनाना है और अपने हैंड राइटिंग में बनाना है। आप जिस भी कोचिंग में कोचिंग किया हो उसके नोट्स को भी आप अपने हैंड राइटिंग में लिखिए और उसी में कुछ कुछ एडिशन करते जाइए। और प्रॉब्लम और कहाँ कहाँ जैसे कि मैं बाद में आगे क्लास लूंगा, तो मैंने जो जो एग्जांपल बताया मैं कुछ कुछ ढूंढा आज। और अननेसेसरी इंट्रोडक्शन भी नहीं लिखना है, अननेसेसरी कंक्लूजन भी नहीं लिखना है। क्वेश्चन पूछा है तभी आप कंक्लूड कीजिए। मतलब जब मैं देखता हूँ कि कुछ भी हो, कोई लोग श्लोक से शुरू करता है, कोई लोग कुछ भी कपलेट से शुरू करता है, ये सब नहीं करना है। जो क्वेश्चन पूछा है उसी को लिखना है। अब जैसे सिटीजन चार्टर के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो सिटीजन चार्टर को ही एक्सप्लेन कीजिए और उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखिए। मुझे लगता है यूपीएससी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तैयारी शुरू और खत्म दोनों ही सेकेंड एआरसी से ही होता है। अगर सेकेंड एआरसी का आपके पास सेकेंड एआरसी पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं, मैंने दोनों सर का नोट्स देखा है, लुकमान सर का भी और पवन सर का भी, उसमें सारे सेकेंड एआरसी के पॉइंट है, तो वो भी पढ़ने का जरूरत नहीं। मुझे लगता है कोई भी एक नोट्स लीजिए, उसी नोट्स को अपने राइटिंग में लिखिए और उसी को बार बार लिखिए, तो मुझे लगता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप अच्छा कर पाएंगे। जनरली तो यही है। और मैंने तो बोल दिया आप लोगों को 5 क्वेश्चन ईच यूनिट से प्रिपेयर करना है प्रीवियस ईयर से। और रिसोर्सेज ज्यादा यूज मत कीजिए, मुझे लगता है वो जो इग्नो का मटेरियल है वो भी बहुत बल्कि है, क्योंकि आप कितना एग्जाम में लिख पाता है उसी के बेस पे इवेलुएट होगा। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन है पूछिए, क्योंकि ये तो जनरल, आज का तो जनरल है, बाद में हम लोग अंदर में बताएंगे यूनिट वाइज। You can raise hand one by one. You can ask. हाँ, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। धीरे धीरे तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे यूनिट वाइज, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट आप लोग पूछिए कोई ये है तो। मैं मोस्टली प्रीलिम्स वालों को पढ़ाता था पहले, प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है उसमें ही मेरा मास्टरी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं कैसे मैंने टॉप कर दिया। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट है ना, या फिर कुछ डिस्कस करना चाहता है, लग रहा है किसी भी कई चीज लोग से ना related कंफ्यूज। हाँ पूछिए। बिल्कुल, आज ओपन डिस्कशन है पूरा, है ना। अब हम लोग का जो टारगेट है कि आज ओपन इंटरेक्शन हो पाए और जो आपके क्वेरीज हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स है, ताकि हम जो कोर्स का डिजाइन भी इस तरह हो, फ्लेक्सिबल रखे, ताकि है ना इट इज बेस्ड ऑन योर कंसर्न्स, योर नीड्स। तो वो मेन हम लोग का प्रायोरिटी पेपर भी सबका, अगर ये जितने यहाँ पे तो बहुत कम लोग हैं, अगर सब लोग लिखेंगे मैं खुद ही चेक करके इवेलुएट भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा मैं। बिल्कुल आंसर्स। हाँ, हम्म कोई अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। यस। बताइए। सर एक चीज मुझे ये पूछनी थी कि सर आपने टेस्ट सीरीज कौन सी यूज की है? नोट्स तो पवन सर के यूज किए थे। मैं टेस्ट सीरीज भी पवन सर का ही किया था। और एक अच्छा। और बात, मुझे कोई टेस्ट सीरीज में 100 मार्क भी नहीं आया, 95, 92, 91। तो वो जो टेस्ट सीरीज होगा उसको आप जस्ट राइटिंग प्रैक्टिस के लिए यूज कीजिए, और उसको कभी इवेलुएट आपको वो लोग नहीं कर पाएगा कोई भी। वो लोग बहुत मैकेनिकल वे में इवेलुएट, आप देखिए मुझे कोई टेस्ट में 100 भी नहीं मिला, कोई में भी। और मैं वहीं पे फाड़ के फेंक देता था टेस्ट सीरीज करोल बाग में। तो वो नहीं कीजिए, मतलब हम लोग इवेलुएट करेंगे, वो लोग नहीं कर पाएगा उस चीज को, इसलिए मेरा पेपर भी नहीं है। मैंने पवन सर का किया था, पर कोई भी टेस्ट सीरीज कीजिए अच्छा है, दोनों अच्छा है। अंसारी सर का भी अच्छा है, पवन सर का भी अच्छा है। मेनली कंसर्न्स देखो, टेस्ट सीरीज में जो हम लोग भी जो इवेलुएट किए कॉपीज, उसमें वही है कि अल्टीमेटली जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।
you are able to use the content whatever आपको you पता know. है, एक सेकंड मैं आपको ये करूंगा, इंटरप्ट करूंगा। आपको इतना लिखना चाहिए कि आपका हैंड आंसर लिखना है, माइंड का यूज ही नहीं होगा बाद में, कुछ टाइम बाद आपका हैंड आंसर लिखेगा, आपका माइंड नहीं लिखेगा। इतना प्रैक्टिस करना है आपको, ये ऐड करना था मुझे। बताइए बिल्कुल, प्रिंस हाँ, भाई। वही मेन वही है कि जो आंसर राइटिंग का प्रॉब्लम स्टूडेंट्स क्या होता है, हम लोग प्लान ये करते हैं कि पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, सिलेबस याद हो जाएगा, तब हम आंसर लिखना शुरू करेंगे। लेकिन हम्म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस छोटा है। अगर आपने ना, इफ यू हैव गोन्स है ना, इफ यू गो थ्रू वंस द सिलेबस, उसके बाद आप लिखना प्रैक्टिस शुरू करना है। और जब हम्म जैसे पीवाईक्यू सर ने है ना क्लियरली बताया कि पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस कितना अधिक है। हम्म क्वेश्चंस के थीम रिपीट होते हैं, 90% 80% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पूछने का नहीं, तरीका अलग आपको होता है। आपको प्रिंस भाई मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा। जैसे प्रीलिम्स का आप इकोनॉमी का क्वेश्चन निकालिएगा, तो वो जो भी आता है अभी का समय में करंट को छोड़ के, स्पेलिंग मिस्टेक के साथ रिपीट होता है। 30 इयर्स पहले जैसा पूछा था वैसा ही पूछता है। हमें तो याद भी रहता है, जैसे 1998 में ये आया था, इसे याद रहता है। सब रिपीट होता है, ये सब बेकार की बातें नया पूछता है। अच्छा, चैट में कुछ लोगों ने और कुछ पूछा है। पूछे। और हाँ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क, पूछ सकते हो अनम्यूट करके। एनी अदर डाउट्स? कुछ भी पूछिए, आपका यूपीएससी से हाँ, रिलेटेड भी आप पूछ सकते हैं। दूसरा। गुड इवनिंग सर। गुड सर या इवनिंग। मुझे अरुण, या अरुण प्लीज। हाँ सर, मुझे ये पूछना है कि अंसारी सर के जो मेरे क्लास नोट्स हैं, उनसे मैं कंसाइज नोट्स कब बनाऊं, मतलब कितनी बार रिवीजन के बाद आइडियल रहेगा, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहा हूँ, तो मुझे वो रिवीजन आप कैसे करते हैं, पहले ये बताइए तो, रिवीजन आप कैसे करते हैं? रिवीजन सर नोट्स पढ़ के ही। उसको लिखते हैं? नहीं सर, लिखता नहीं है अभी। आप ऐसा कीजिए, जैसे कि आरटीआई पे आप कुछ पढ़ा, ट्रांसपेरेंसी पे, तो हम्म। उसको जो भी आप पढ़े, तो रिवीजन ऐसा कीजिए कि आप एक लूज शीट लीजिए, लूज शीट पे उसी को लिखिए। आप पढ़ने के बाद कॉपी हटाइए, उसको लिखिए, और लिख के उसको डस्टबिन में थ्रो कीजिए, फिर लिखिए, फिर लिख के डस्टबिन में थ्रो कीजिए, तब देखिए कितना रिमेम्बर करेगा। रिवीजन मैं ऐसे जो करता जो हूँ, मैं लिखता हूँ उसको। सर जो जो टॉपिक पढ़ा है उसके साथ साथ लिखो, आप ये कहना चाह रहे हाँ, उसके साथ साथ लिखना है, और उसको फेंक देना है, उसको रखना नहीं। जस्ट हो? अच्छा। प्रैक्टिस के लिए उसको लिखना है, तो हाँ, आपके 10 में से 7 पॉइंट याद रह जाएंगे हमेशा के लिए। हाँ, बेसिकली ना अरुण, ये जो एक्टिव रिकॉल का स्ट्रेटजी होता है कि वंस हम्म यू रीड ए टॉपिक, जस्ट हम्म। किताब बंद करके, एंड देन यू ट्राई टू रिकॉल कि क्या याद हम्म रह रहा है, व्हाट एवर यू आर एबल टू हाँ, रिप्रोड्यूस, वो दैट वही विल। एग्जाम में आएगा, वही हाँ, एग्जाम में आप वही। लिखता है। हाँ, प्रॉब्लम होता है क्या कि अपन है ना रीड करते हैं और आंसर लिखने का अलग स्ट्रेटजी। तो जैसे आप रीडिंग कर रहे हैं, लिखे मतलब अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस बंद करके फिर उसको एक व्हाइट शीट में लिख के रखना है, रिकॉल करने का कोशिश करना है कि कितना हमें याद आ रहा है। अगर याद नहीं ठीक। आ रहा है तो दैट मीन्स कमांड नहीं हुआ है टॉपिक पे, फिर यस उसको यस, यस दोबारा यस से करना ये है। सही है, ये सही है। और जैसे आप लिखेंगे उसको ना, तो लोगों को लगता है कि माइंड में याद रहेगा, पर हाथ को भी याद रहता है कि ये लिखा है। आप जब लिखने जाइएगा तो वो सारे पॉइंट आते जाएंगे, क्योंकि मैंने ये लिख रखा है ना। तो रिवीजन का ये मतलब है 2-3 बार उसी को लिखते रहो यूपीएससी ठीक है। में। थैंक यू सर। या एनी अदर डाउट? हेलो सर. हेलो। यस यस प्लीज। सर, माय नेम इज भूषण. सर, आई वांटेड टू आस्क यू वन थिंग. सर, जो आपने ये इंटरलिंकिंग वाली बात बोली, तो सर जैसे सर वो नहीं करेंगे तो जैसे कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं, होता है आप कि आपने. करना है, आप करने में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत ही कीजिए, पर अननेसेसरीली नहीं करना है। मुझे लगता है वो बहुत रिस्की है कि आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं, आपने इंटरलिंकिंग में वेबर की जगह आपने टेलर को गलती से हो गया, तो वो तो गया ना। तो रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर आप पूरा परफेक्ट है कि ये उसी का है, इसमें वही चीज डाल सकते हैं, तभी डालिए। नहीं तो बहुत खराब लगता है, क्योंकि मैंने 100 से ज्यादा पेपर चेक किए हैं ना, कहीं का कहीं लिंकिंग हो रहा है। हाँ, अब वही मैंने कहीं लिंकिंग नहीं किया है, ये मैं बता बिल्कुल। दूं, हाँ, मैंने। मतलब देखो प्रॉब्लम यही हो रहा है ना भूषण। नॉर्मली क्या होता है, इंटरलिंकेज के नाम पे वी पुट है ना एनी थिंकर, और कहीं भी फिट करने की कोशिश करते हैं, तो दैट हम्म बिकम्स आर्टिफिशियल, है ना। हम्म उसको आर्टिफिशियल नहीं राइट लगना चाहिए। अगर राइट और राइट। जो आंसर का जो नेचुरल फ्लो है, दैट शुड नॉट बी ब्रोकन। अगर हम मतलब इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, है ना। अभी हम्म आपको इंटरलिंकेजेस करने हैं, इफ यू वांट टू डू इट, इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल, लेकिन इट शुड नॉट बी आर्टिफिशियल। इट्स जैसे आप ना, जैसे टेस्ट में यू कैन प्रैक्टिस इट इन द टेस्ट,
while preparing the topic, जब आप चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं तो try to see where I can put those thinkers, है ना? डायरेक्ट there are students who directly apply the thinkers in the answer sheet. अब वहां पे सही। लगता है कि कोई लिंकेज ही नहीं है, आर्टिफिशियल हो गया, तो that creates negative impression in the minds of evaluator. ये तो जबरदस्ती है ना, कुछ भी याद है बस वॉमिट कर रहे हैं, तो that creates negative impression. Okay, sir. Sir, one more thing. Sir, there is this debate about writing in points and paragraphs. तो सर जैसे एज मच एज आई नो पेपर 2 तो काफी जीएस जैसा होता है, तो देयर राइटिंग इन पॉइंट्स ओके। कैन हेल्प। तो सर पेपर 1 में अंसारी सर जनरली सेज कि आपको पेपर 1 पैराग्राफ में लिखना चाहिए। मतलब सर ये क्या है ऐसे, व्हाट डू यू थिंक पर अबाउट इसमें इट? ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरा वो ये क्या दोनों, वो जुनेद मेरा एक दोस्त था, वो दोनों ही लिखता है, पॉइंट में भी जहां उसको मन करे, राइटिंग में भी। इससे मुझे लगता है ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मैं पॉइंट में लिखता हूँ। मैं पेपर 1 भी पॉइंट में लिखता हूँ, पेपर 2 भी पॉइंट में लिखता हूँ, पर आप कैसे भी लिख सकते हैं। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड एक चीज थी कि जैसे कुछ क्वेश्चंस पेपर 1 में ऐसे होते हैं जो आप इजीली ब्रेक कर सकते हो। जैसे इस साल का जो क्वेश्चन था कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के कुछ ड्रॉबैक्स है, इट इज आल्सो बेनिफिशियल एग्जामिन। तो इसको पॉइंट्स में सर लिखना काफी आसान है। बट हाँ, सर बहुत आसान। क्वेश्चन लाइक जैसे एक क्वेश्चन था, प्रोसेस ऑफ डिसीजंस इज लार्जली द टेक्निक ऑफ नैरोइंग चॉइसेस, हम्म एक्सप्लेन। अच्छा, ये मैं समझ गया। ये प्रॉब्लम ये होता है कि कोई कोई क्वेश्चन का आपको पता ही नहीं लगे ये एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, तो उसमें आप पॉइंट मत क्रिएट कीजिए, उसमें आप पैराग्राफ लिखिए। क्योंकि सर लेकिन इसको देख आप के, यस सर प्लीज कंटिन्यू। नहीं, बताइए बताइए और। हाँ सर, ये क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि इसका कंटेंट मुझे याद आ गया कि डिसीजन मेकिंग थ्योरी, हाउ डू वी टेक अ डिसीजन बाय नैरोइंग चॉइसेस, ये इसमें एक्सप्लेन करना है। बट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन दिस यूजिंग पॉइंट्स। मैं सर, क्योंकि सर पॉइंट्स अलग अलग होने चाहिए ना, एवरी पॉइंट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। राइट, ये साइमन साइमन का डिसीजन मेकिंग में आप लिखना है, पर ये ठीक है। इसमें आपको पैराग्राफ लिखना होगा, मुझे लगता है कॉम्बिनेशन होना है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस टाइप का जो क्वेश्चन होगा जिसमें 100% आपका, जो मोस्टली पेपर 2 को आप पॉइंट में लिख सकते हैं, पर पेपर 1 में कहीं कहीं आपको पैराग्राफ लिखना होगा। ये यस सही है, सर। ये सही है कि पहले से सर प्रिपेयर एक मत कीजिए, लेकिन पॉइंट पे नंबर मिलता है। जैसे कि बहुत सारा लोग तो शुरू के 3-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, उसके बाद तो खुशबू से नंबर देंगे, स्मेल से। तो वहां पे तो पॉइंट अगर रहेगा 7-8 लिखा है तो वो देख देख के देगा। तो फोकस कीजिए पॉइंट में ज्यादा लिखने का, पर बहुत सारे क्वेश्चन को आप पैराग्राफ में लिखना ही होगा। ये भी एक सही है, दोनों सर होना तो है। दिस आई डू फॉर माई सेल्फ कि जो क्वेश्चन मुझे देख के लग रहा है कि यार इसको पॉइंट से एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, तो उसको मैं पैराग्राफ में लिख लेता हूँ। ये ऐसा ही है, मैं भी ऐसा ही किया। ये राइट है। ओके सर, ठीक है, और थैंक यू ये सर। मोस्टली 10 मार्कर में, आप 10 मार्कर का जो सीधा एक स्टेटमेंट दे देता है और उसके बाद आपको बोलता है उसको आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं। मैं भी ऐसा ही करता था। ओके सर। और ये मतलब जो एनालिटिकल बहुत क्वेश्चंस अच्छा आते हैं, क्वेश्चन है, हाँ ये बहुत क्वेश्चन अच्छा बहुत क्वेश्चन है। वही मतलब कंफ्यूजन जो प्रैक्टिकल एग्जांपल सर ने बताया ना कि प्रैक्टिकली कैसे पॉइंट वाइज या पैराग्राफ को समझाना है ना, हम्म उस हिसाब से, हाँ उस हिसाब से सर ने बोला कि आपको लग रहा है कि है ना, इफ यू डू नॉट नो द डायरेक्ट आंसर, अब उसमें क्या है, अगर आपने पॉइंट लिखा तो यू आर मेकिंग योर मिस्टेक्स वेरी ऑब्वियस, वो तुरंत देखेगा तो यू नो यू हैव द फंडामेंटल फ्लॉज, तो उस और केस एक में और है ना। चीज प्रिंस भाई मैं ऐड करना चाहता हूँ सर, कि बहुत सारा 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है इसमें भी नहीं आएंगे, जीएस के भी 2-3 जगह नहीं आएंगे, बहुत जगह नहीं आएंगे। तो आप लोग सब एक काम कीजिए, गांधीयन जो आइडियाज है वो 10 पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। जैसे कि मैंने कुछ लिख के लाया है कि गांधीयन बोलता है कि रिसोर्सेस, लैंड रिसोर्सेस, ये सब ट्रस्टीशिप होना चाहिए। ट्रस्टीशिप का मतलब है कि आप इसको यूज कर सकते हैं पर उसको सेल नहीं कर सकते। इंडिया में सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो लैंड डीलिंग्स में ही होता है। जैसे आदर्श स्कैम और रॉबर्ट वाड्रा स्कैम सारा लैंड डीलिंग्स में ही होता है। तो करप्शन को सॉल्व करने के लिए गांधीयन आइडिया है कि गवर्नमेंट शुड बी द ट्रस्टीशिप ऑफ रिसोर्सेज। और दूसरा चीज मैं बताता हूँ, गांधी जी ने कहा था कि विलेज को हम
हम लोग इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनाना है, मतलब वहाँ पे सारा फैसिलिटीज जो है मॉडर्न जो सिटीज में अवेलेबल है हम लोग विलेज में अवेलेबल करना है। इससे कितना सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जो मेल सेंट्रिक माइग्रेशन है गांव से शहर की तरफ, वो रुकेगा। उससे सोसाइटल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है कि वुमेन लोग ही रह जा रहा है गांव में, और बहुत ज्यादा उन पे डबल बर्डन आ जा रहा है कि उनको एग्रीकल्चर भी करना है, ये भी करना है। तो गांधीयन आइडियाज मेरे पास तो है, मैं आपको बताऊंगा ही आगे क्लास में। वो यूनिवर्सल है। जैसे कि उन्होंने क्रेज फॉर टेक्नोलॉजी के बारे में भी बोला था कि हम लोग एक्सेसिव क्रेज फॉर टेक्नोलॉजी नहीं होना है। आप देखिए इंडिया इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया में सब कुछ है, फिर भी इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। और चैट जीपीटी, अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आने के बाद तो जॉब कम ही होगा ना। गांधी वहां भी रेलिवेंट है। मुझे लगता है गांधी का मतलब 10-15 पॉइंट्स याद रखना है। और मैंने पिछले साल ऐसे लिखा था, गांधी दोनों ऐसे में मैं गांधीयन आइडिया पे ही लिखा था। मुझे 140 आए थे उस साल, टॉप 10 में भी एक दो को ही आए थे 140। तो मुझे लगता है गांधी को थोड़ा आपके टिप्स पे 10 पॉइंट्स होना है उनके, जो आप कनेक्ट कर पाए। ये और ये बोलना था मुझे। वो इसमें भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि गांधी से बड़ा लीडर तो ह्यूमन हिस्ट्री में कोई बना ही नहीं। वो जब दांडी मार्च किया था तो उसके पीछे 30 lakhs लोग थे। तो वो ह्यूमन सिविलाइजेशन में जब से टाइम इमेमोरियल से कोई लीडर के पीछे 30 लाख लोग नहीं थे। तो उससे बड़ा लीडर है ही नहीं। और ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है अल्टीमेटली तो लीडरशिप से रिलेटेड ही है। तो उससे आप बहुत जगह यूज कर पाएंगे, ये और कहना। और अगर किसी और को कुछ पूछना है प्लीज आप। सर हेलो। हाँ, हाँ यस। हेलो, बताइए। सर मैं से स्नेहल। सर मेरे को ये ओके। पूछना था कि हम जब पढ़ते हैं बैठ के नोट्स, तो हम्म कंपार्टमेंटलाइज्ड नोट्स होते हैं। एक हम्म टॉपिक पढ़ लिया, उसके मेरिट्स पढ़ लिए, उसके डीमेरिट्स पढ़ लिए, उसका वे फॉरवर्ड पढ़ लिया, या हम्म गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या थे, या फॉर मैटर ऑफ टॉपिक जिसका हम्म टॉपिक के हिसाब से जैसा कंटेंट होता है। बट जो हम्म क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं। हम्म वैसे क्वेश्चन हाँ, के लिए पॉइंट्स जनरेट करने में फिर मुश्किल होती है, क्योंकि या तो फिर डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट्स नहीं होंगी, हम एक ही हम्म बात पे बार बार बात कर रहे हैं। हम्म क्योंकि पर क्वेश्चंस बहुत मुझे, ब्रॉड, उनको कैसे डील करते हैं। हाँ मुझे लगता है ना उसमें आप जो क्वेश्चन का टॉपिक होगा उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, और वे फॉरवर्ड जो आपने पढ़ा है अपने नोट्स पे ना, उस पे आपको डालना है वे फॉरवर्ड। तो लगेगा इन्विजिलेटर को कि इनको तो सारा सॉल्यूशन पता है, सारा प्रॉब्लम पता है। अगर ज्यादा ये हो तो पहले वाई एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन को आप करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है वो कीजिए। और मोस्ट ऑफ द फोकस आपको वे फॉरवर्ड पे ही करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सिटीजन चार्टर जो है वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व भी नहीं करता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूपीएससी है। यूपीएससी का सिटीजन चार्टर है, उसने कभी स्टूडेंट से सजेशन मांगा ही नहीं। वो लोग खुद अपने आप ही उसको ये किया। तो इस टाइप का वे फॉरवर्ड में जो जो पॉइंट है उसको आप डालना है ज्यादातर। हाँ आपका हाँ। क्वेश्चन ये है कि ये जो है ना, आपने आपने जो क्वेश्चन पूछा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको धीरे धीरे ही आएगा, कैसे करके आप मिनिमाइज करना है चीजों को। सर वेरी ट्रू। सिटीजन चार्टर बहुत ऑब्जेक्टिव टॉपिक हो गया। जैसे हाँ कुछ हाँ क्वेश्चंस आते हैं ना जो बहुत ब्रॉड आते हैं, जो एज पबैट एज सब्जेक्ट पे क्वेश्चन कर लेते हैं, या एकदम ब्रॉड क्वेश्चन जिसका कंटेंट हमारे पास में नहीं होता है, जिसका हाँ क्वेश्चन कंटेंट देन एंड देयर पेपर में बनाना है। हम्म उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। उस हाँ टाइप का बेसिक। आपको उनको क्वेश्चन बताना होगा तभी मैं भी बता हाँ पाऊंगा नहीं, जैसे इन वो जनरल कैसे जो डील आइडिया करें, जैसे व्हाट कि। आई। हाँ, जो सर एक मेरी। सेकंड हाँ हाँ, आपको। आप प्रिंस भाई बताइए। हाँ स्नेहल, बेसिकली जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस। सर हाँ इफ हाँ सर बोलिए, नहीं नहीं योर। सर आप बोलिए। ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाई करते हैं पूरा इंटायर सिलेबस, वंस यू गो थ्रू द सिलेबस, तो नाउ यूपीएससी एक्सपेक्ट यू टू राइट द होलिस्टिक आंसर वेयर यू हम्म हैव द कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। है ना। अब जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ लिया, तो चैप्टर तो हमारे कन्वीनियंट के लिए बटा है, या टॉपिक में पेपर 1 पेपर 2 या है ना अलग अलग चीज में जो बांटा गया है, तो दैट इज कंपार्टमेंटलाइज जो किया गया, तो वो हमारे कन्वीनियंस के लिए। हम डिस्क्रीट एस्पेक्ट, जैसे टेलर क्या बोलता है, कोई भी काम करना है पहले उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना है, फिर हर पार्ट्स को बेस्ट तरीके से करना है, और उसके बाद हमको तब जाके बेस्ट आउटपुट आता है। उसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जितने भी चैप्टर्स पेपर 1 है या पेपर 2 है, जितने भी टॉपिक्स बटे हैं, वो हमारे कन्वीनियंस के लिए है कि हम उसको अच्छे से माइक्रो एस्पेक्ट समझ लें, सो दैट वंस द क्वेश्चन इज आस्क्ड
यू हैव टू आंसर इट यूजिंग द इंटायर नॉलेज ऑफ पबैट, है ना। उसमें आपका, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक तो मल्टी डिसिप्लिन भी है, वो एडवांटेजियस भी है, और कई बार है ना थोड़ा स्टार्टिंग प्रैक्टिस में, इसलिए जो शाहनवाज सर ने बोला कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, कि जो आप नॉलेज एक्वायर करते हैं, है ना, उसको जब तक आंसर शीट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब जब हम चैप्टर 1 का टेस्ट पहली बार दे रहे होते हैं, उस समय हम लोग का आंसर क्या होता है, बहुत ही नैरो होता है, लिमिटेड टू दैट चैप्टर होता है। लेकिन जब उसके बाद हम मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें आंसर डिफरेंट होता है, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 के जो नॉलेज होते हैं, सारे चैप्टर्स के आइडियाज होते हैं, तो वो हम यूज कर पाते हैं। ऐसे जो ब्रॉडर क्वेश्चन जो और आप इनका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन को आप ये नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ना, पहले आप जब लिखिए तो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन सब लिखिए। जैसे मैंने सिटीजन चार्टर दिया, जैसे करप्शन करप्शन तो एवरी ईयर आएगा, उससे रिलेटेड लिखिए। पहले ऑब्जेक्टिव वाला को लिखेंगे, तब जो वो ब्रॉड वाला चीज है ना, वो आपके पकड़ में आएगा। तो पहले ही आप टफ क्वेश्चन को नहीं देखिए, ब्रॉड वाला को नहीं देखिए, आप खुद ही उसको करना सीख जाएगा लिख के आए तो। वैसे ये तो फर्स्ट सेशन है ना, आप लोग तो क्वेश्चन भी लिखेंगे ना, हम लोग तो ऐड करेंगे उसमें, तब धीरे धीरे करके आएगा। और हम लोग भी कोई बहुत परफेक्ट नहीं है, हम लोग भी तो सिखाएंगे आप लोग को जो हम लोगों को पता है। ओके फाइन सर। सर एक एक्सक्यूज मी क्वेश्चन सर। डिस्कस कर सकते हाँ, हैं क्या? पूछिए पूछिए। जैसे एक क्वेश्चन आया था इसी साल, efficiency in the specialized sense is an organization's capacity to offer effective inducement in sufficient quantity to maintain the equilibrium of the system. Analyze. ये क्वेश्चन पढ़ के ये हमें समझ क्वेश्चन में आ रहा है कि ये सॉरी, क्वेश्चन कौन लिखा होगा, वो ही जानता है, मतलब। हाँ, बताइए अच्छा बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ रहा है कि इंड्यूसमेंट लिखा है, एफिशिएंसी लिखा है, तो चेस्टर बर्नार्ड की तरह डायरेक्ट कर रहा है। पर हम हम्म, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ चेस्टर बर्नार्ड के बारे में या कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम के बारे में बात नहीं कर सकते, क्वेश्चन एफिशिएंसी के बारे में है। तो हमने हम्म, एक दो पॉइंट चेस्टर बर्नार्ड के बारे में लिखे चलेगा, पर उसके आगे अगर हम्म, हमें डाइवर्सिफाई करना है तो फिर हम्म। पॉइंट्स कैसे जनरेट करेंगे? हाँ, नहीं, ये क्वेश्चन को हमें भी देखना होगा। ये वाला क्वेश्चन अच्छा मैंने देखा था। ये इतना टिपिकल तीन चार चीज लिख दिया, ये कहना क्या चाह रहा है पता नहीं है। पर मैं देखूंगा ये वाला क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक ओके है, ओके ओके फाइन। पॉइंट मतलब सर नोटेड। मेरा आइडिया यही था कि ब्रॉड क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। हाँ, मैं समझ गया, ये क्वेश्चन को वो खुदा ही लिख पाएगा। हाँ, फिर भी ठीक है कोई कोई टेंशन नहीं है, पूरा आपको 80% ही अच्छा से लिखना है, बाकी को तो। अरे मैंने ना एथिक्स में दलाई लामा का पॉइंट में गांधी लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि परफेक्ट लिखना है, कम खराब लिखना है। हम्म, ठीक है सर। सब खराब लिखेंगे, कम खराब जो लिखेगा वो अच्छा नंबर आएगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर ये जो स्नेहल ने चीज पूछी ना, उसी से रिलेटेड मेरा डाउट था। अब हम्म जैसे ब्रॉड क्वेश्चन है तो किस तरीके से सोचना है? एक सर एग्जांपल है मेरे पास में उसका 2022 पेपर का। बताइए बताइए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स व्हाट एंड व्हाई फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी आई विल रिपीट इट। ओके। Public management takes what and why from public administration हम्म and how from business management. हम्म Elaborate. ओके, इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का डिफरेंस पता होना, वही वही बोला है। आप आपसे मैं पूछूं कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, बताइए, तब आप क्या बोलेंगे। मैं क्वेश्चन है आपसे, जैसे मैं सर बोलूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, उसी पे ये क्वेश्चन है, वही थीम पे, तो आप क्या बोलेंगे, सर मतलब कोई पहले तो पॉइंट है मैं, आप। हाँ हाँ सर, कुछ चीज़ है जैसे दोनों के हम्म एम के बारे में बोलूंगा कि मैनेजमेंट का हम्म, एम could be related to profit making but administration is not necessarily related to profit making. फिर एक हाँ, पॉइंट ये मेरे एक दिमाग में पॉइंट है। हाँ। बाद में बाद में एक भी पॉइंट ये भी आएगा कि दे आर नॉट सेपरेट, दे आर इन नॉट इनसेपरेबल, हम्म they are both, matlab there is a blurred line between them. We won't be able to हम्म separate this is management and this is administration, because in administration also there is some management and vice versa. तो एक तो हम्म एम का डिफरेंस हो सकता है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा, मैनेजमेंट थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल होता है, हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरली दैट मच प्रोफेशनल। तो फिर एग्जांपल में दे दूंगा नहीं, कि वो नॉट नेसेसरी दैट मच प्रोफेशनल, ये तो बोलना आपने एडमिनिस्ट्रेशन का नेगेटिव साइड से बोल दिया ना, ऐसा नहीं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, वो मोस्टली जो टेलर को अगर आप पढ़े तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का फोकस है, और मैनेजमेंट जो है वो मिडिल एंड
फ्लोर लेवल मैनेजमेंट का फोकस है। ये एक डिफरेंस है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में। और मोस्टली जो आपने कहा वो सही है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पब्लिक बॉडी के लिए होता है और मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट बॉडी के लिए होता है, तो ऑब्वियसली प्राइवेट बॉडी का प्रॉफिट मोटिव होगा। लेकिन टेलर और वेबर कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है और मैनेजमेंट जो है वो मिडिल एंड फ्लोर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है। इसी पे ये क्वेश्चन है, इसको आपको लिखना है इस बेसिस पे। पर आपने पॉइंट सही दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपका? इसी पे लिखना है, यही लिखना है आपको। सर क्वेश्चन वही है, अब शायद मैं एग्जैक्ट एग्जांपल ढूंढ नहीं पा रहा। मतलब जैसे स्नेहल ने क्वेश्चन पूछा ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो थोड़ा ब्रॉड होता है, तो सर उसमें ऐसा कर सकते हैं कि दिमाग में जो सिलेबस है उसके चैप्टर्स को रन थ्रू करके जहां जहां से जो जो पॉइंट मिल रहा है वो पॉइंट से उसका आंसर जनरेट करना। ये भी कर सकते हैं आप, पर जैसे ऐसा सर एक नहीं है कि क्वेश्चन है, हाँ। गवर्नेंस इज अबाउट मैनेजिंग सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क्स। ये आया था। तो सर इसको ऐसे थोड़ा ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। जितने भी अलग अलग फंक्शन है उसको एक ही डायरेक्शन में ले जाना, वही गवर्नेंस है। गवर्नेंस का मतलब तो डिसीजन मेकिंग ही होता है, लेकिन नेटवर्क्स बोला है ना, नेटवर्क्स मतलब अलग अलग फंक्शन है, उसको एक ही डायरेक्शन में ले जाना है। और एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्शन क्या है? वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री सारा काम कर रहा है, सब लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। उसी उसी बेसिस पे बोला है ये। पर ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ना बाद में, आज तो डिटेल में सेशन तो अभी ओके डिटेल सर। में करेंगे। जैसे जो अभी क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चन पूछा, जैसे व्हाट एंड हाउ, है ना, तो प्राइवेट से लेते हैं तो मतलब डू वी कंप्लीटली एग्री, है ना, वो भी एक एस्पेक्ट आता है। इफ यू गेट वो भी मतलब, एस्पेक्ट है। है ना, कि क्या ये कंप्लीटली सही स्टेटमेंट है या नहीं है, पूरा डिबेट इसी पे चला है। क्यों जेनरिक व्यू क्यों आया, एडमिनिस्ट्रेशन का जेनरिक व्यू आया, यानी दोनों उस व्यू को रिजेक्ट किया गया था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। वो भी एक व्यू था, है ना। वो अब भी एक बाद में व्यू है। जाके हाँ तो वो आया, लेकिन हम इन जनरल जो टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट पढ़ते हैं तो उसमें तो नॉर्मली हम लोग क्या मैनेजरियल टेक्निक्स या एनपीएम मॉडल जो था, या एनपीएस क्या करता है, एनपीए के आइडियाज को भी ले रहा है और एनपीएम के टेक्निक्स को भी ले रहा है। तो हम उसको मतलब कई आइडियाज को इंटरकनेक्ट करके आंसर बहुत ही ये जो क्वेश्चन हम एग्जांपल। लोग डिस्कस करेंगे बाद में प्रिंस भाई। हाँ हाँ आज तो हम डिटेल लोग में। प्रिपेयर कैसे करना है वो सब। हाँ बस ये तो देखो, हम लोग का टारगेट ये होगा कि हर चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट या आज के मतलब पिछले 4-5 साल में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सारे कंसेप्ट को ब्रश अप कर दें एक बार। फिर उसके बाद जो अगला टाइम होगा मतलब नेक्स्ट 2-3 सेशन में, पहला 1-2 सेशन हम पूरे टॉपिक्स को एक बार थॉरो रिवीजन करा लें। फिर उसके बाद उससे चैप्टर पे जितने क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं अब आ चुके हैं उस पर डिस्कशन करके आप लोग है ना लिख के फिर हम लोग आंसर भी लिख के आंसर पे बात कर सकते हैं हम लोग, मैं चेक हाँ कर कुछ लूंगा, आंसर आंसर पे भी बिल्कुल बात कर सकते हैं। और कॉमन डिस्कशन करने से क्या होगा, बाकी लोग को भी एडवांटेज हो सकता है। मैं अपना अब निकालूंगा नोट्स, उस तब अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। हाँ और कोई डाउट है जनरल, मतलब कोई और क्वेरीज हो। प्रिपेयर कैसे करना है, आंसर कैसे लिखना है। और डू नॉट रीड मोर देन वन बुक्स, ये याद रखिएगा, अलग अलग हाँ मटेरियल कलेक्ट नहीं करना है। मैंने तो कोई बुक नहीं पढ़ा है, मैंने प्रसाद एंड प्रसाद भी नहीं पढ़ा है, तो बुक नहीं पढ़ी है। कॉमर्स में बहुत बुक पढ़ा है, कभी पास ही नहीं हुआ। देखो ओरिजिनलिटी इससे क्या दिखता है कि सो सर का एक्सपीरियंस दिखा रहा है कि ओरिजिनलिटी आंसर एक्चुअल जो रॉ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट होता है ना, हम लोग मैकेनिकल हो जाते हैं, बहुत ही एकदम टेक्निकल बनने की कोशिश करते हैं, तो डेट बिकम्स कि है ना रट के या आके स्टूडेंट लिख रहा है। तो जो नेचुरलिटी है, ओरिजिनलिटी है, या जो रॉ कंटेंट आना चाहिए, है ना, कि आप और सब्जेक्ट कुछ को कुछ प्रिंस भाई, कुछ कुछ जो है वो यूनिवर्सली आप यूज कर सकते हैं। कोई कोई एग्जांपल ऐसे क्रिएट कीजिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल एवरी पेपर में लिखता हूँ, कहीं पे भी लिखूं कुछ भी, कि वो जो मैंने वो अपने लेक्चर में भी बताया था कि एंशियंट इंडिया वो जो है वो सेकुलर था हमेशा। हमेशा से इंडिया एक सेकुलर, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैनिज्म से था, उनके बेटे बिंदुसारा था वो आजीविका सेक्ट से था, उनका बेटा अशोका द ग्रेट था जो इनिशियली शिव जी का फॉलोअर था, बाद में बुद्धिज्म ले लिया। आप एक ही फैमिली में देखिए, एंशियंट टाइम में रिलीजन पर्सनल चॉइस था, और हम लोग वो लोग को ये कहते, ये एग्जाम्पल कहीं लिख देंगे ना तो देखते हैं, मतलब वो तो अच्छा लग जाएगा। इस टाइप का तो कुछ एग्जाम्पल सब हाँ ये ये ओरिजिनल चारों पेपर में। थिंकिंग, ओरिजिनल थिंकिंग दिखा कि अपने चीजों को सबके पास है हाँ लेकिन वो सोचना, है ना। वही वही
तो उस टाइप का 20-25 एग्जाम्पल आपके पास होना है मेंस लिखने से पहले। वो हर वो आपको चैप्टर पे ही जानना हम लोग ना है। एम्फेसाइज करेंगे कि हर चैप्टर हाँ में हाँ, तो मेरे क्या पास भी जा जो है मैं दे दूंगा, हाँ मेरे सर पास भी शेयर है, करेंगे, दे दूंगा। है ना। हाँ बेसिकली कोर्स जो डिस्कशन होगा कुछ चैप्टर्स है ना, मिलके हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सारे चैप्टर्स का कवरेज भी हो जाए, क्विक रिवीजन भी हो जाए, और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे भी आप उस कंटेंट को यूज कर पाए, है ना। ये सारे अच्छा, ऑब्जेक्ट सारे स्टूडेंट लोगों ने मेंस लिखा है? नहीं, बहुत सारे फर्स्ट टाइमर भी है, कुछ लोग है ना, हम्म, कई लोग 3-4 अटेम्प्ट भी दिए हुए हैं, तो है ना, गुड ओके मिक्स ऑफ ग्रुप ओके ओके है, तो ओके। एक आप दूसरे लोग का लर्निंग नॉर्मल कर। क्वेश्चन, हाँ नॉर्मल और भी क्वेश्चन ये सबसे भी पूछ सकता है आप लोग मेरे से। शनवास सर, हाँ बताइए। सर आपने मतलब यू गॉट सच अ हाई स्कोर, और वो भी आपने सिर्फ एक ही साल प्रिपेयर किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देयर आर हम्म, फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर स्टडीइंग फ्रॉम पवन सर फॉर इयर्स। तो सर आपको क्या लगता कि आपने क्या अलग किया, या फिर वही मैंने आपको बोला ना, मैं कॉमर्स ग्रेजुएशन में भी मैं किया, मैंने एमबीए भी किया, मैंने 11-12 भी पढ़ा, फिर भी मैं 3 अटेम्प्ट में 200 नहीं ला पाया। क्योंकि थिंकिंग ये होता है कि सारा पता होना है, पर आपका थिंकिंग होना है कि क्वेश्चन जो पूछता है उसी के बारे में पता होना है। आपको जितना लिमिटेड नॉलेज होगा उतना लिख पाएंगे आप, जितना ज्यादा होगा उतना कम पॉइंट आएगा। तो इसीलिए सारा सिलेबस को आपको पॉइंट वाइज 2-3 बुकलेट में होना है। वो एग्जाम से पहले रिवाइज कीजिए और जाके बस लिख आइए। कोई टैलेंट कोई कुछ नहीं, जस्ट ये पॉइंट वहां पे होना है, हो गया। ये मुझे लेट पता चला। नॉर्मली अधिक कंटेंट होने के बाद ना जेनरिक कंटेंट या बहुत ही हाँ, वेग आंसर आ होता नहीं है, पाता है। पर वेग एक आंसर टॉपिक होता पे है। मान लीजिए आपके पास 5 पॉइंट है, करप्शन पे आपके पास 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, आप 6 का जे जाके लिख दिया, लेकिन करप्शन पे आप लोकपाल भी पढ़ेंगे, आप आरटीआई भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, तो आएगा तो कुछ नहीं ना आपके पास। आपको तो वो जज नहीं जानता है ना कि शाहनवाज अली इतना इंटेलिजेंट है कि नहीं है। वो तो यही जान रहा है कि इस पेपर में क्या लिखा है, उस पेपर में ही लिखना है बस। हाँ बाकी लोग और कुछ डाउट्स है ना, कुछ लोग जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस कि क्या रहा पवेट में, कहाँ दिक्कत हो रही है, जैसे है ना कई लोग नोट्स पढ़ते तो दिक्कत हो रही है, या टेस्ट लिख रहे हैं तो प्रॉब्लम फेस करते हैं। शाहनवाज सर, एक क्वेश्चन था। या बताइए। शाहनवाज सर, एक क्वेश्चन था सर, आपने अपना बेस नोट्स कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल किया था सर? मैंने तो पवन सर का लिया था, पवन सर। सर दोनों पेपर के लिए आपने ओके पवन सर, सर के ओके सर, नोट्स थैंक यू। रेफर करे थे? हाँ, पवन सर के नोट्स, और मैंने प्रसाद प्रसाद भी नहीं पढ़ा है, मैंने वहीं से थ्योरी भी पढ़ा। तो इसलिए पर आप कोई भी ले सकते हैं, आप अंसारी सर का भी नोट्स अच्छा ही है, मैंने देखा है। पर नोट्स पे ही फोकस कीजिए, मुझे लगता है बुक पे नहीं। सर एक्सक्यूज मी सर, सर मैं बताइए। सिनर्जी से मैंने फाउंडेशन कोर्स करा था। मोस्ट हम्म ऑफ द हमारा जो कंटेंट है हमें ज्यादातर क्रिटिसिज्म पे फोकस नहीं करा गया था। तो हम्म ज्यादातर बल्कि क्वेश्चंस क्रिटिसिज्म और एनालिसिस पे बेस्ड होते हैं। वही तो करना है मोस्टली, हाँ। जी, तो सर यही दिक्कत हो रही थी कि एक्चुअल में जो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है तो वहां पे कवर अप नहीं हो पाया था। यही तो प्रॉब्लम है, क्रिटिसिज्म। देखिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंस के समय जब था जैसा था, आज भी वैसा है, कुछ भी नहीं बदला, सब सेम है। इंडियन जैसे एक डीएम होता है, उसका जो पावर है वो एनीवेयर इन द वर्ल्ड में भी इतना पावरफुल कोई पोस्ट है ही नहीं। तो कुछ बदलता नहीं है, तो क्रिटिसिज्म तो भरा भरा होना है सबके पास। यस सर। तो सर क्रिटिसिज्म में लैकिंग हो रहे हैं मेरे नोट्स, तो मैं उसके लिए किधर से रेफर करूं फिर मैंने सोर्स? तो पवन सर का पढ़ा था, आप उनका हैंड रिटन नोट्स ले लीजिएगा, हैंड रिटन, जी, मार्केट में मिलता है हैंड रिटन, वो ले क्योंकि सर लीजिएगा। हमें फिर वो ये चीज बोली जा रही थी कि प्रसादन प्रसाद आप प्रेफर करिए, मोहित भट्टाचार्य भी रेफर करिए, आप ये सब रेफर करिए फिर अब उधर देखिए, से मैं कवर तो अप वो करने नहीं के लिए। जानता हूँ, मैंने तो नहीं किया है कुछ भी ना। मैं जी। तो रेफर करते करते कॉमर्स में 3 बार फेल हो गया। तो रेफर ही मत कीजिए, मुझे लगता है किसी को भी। पर कर ओके लीजिए, मैं ऐसे मजाक कर जी रहा हूँ, कर लीजिए। सर, आपने ये है कि वाजीराम का नोट्स, ये क्लास का नोट थैंक यू देखे हैं सर? सर वो नहीं नहीं आपको देखा है, कैसा लगा? बाजीराम का नहीं देखा, बाजीराम का नहीं देखा मैंने। लुकमान सर का देखा और पवन सर का देखा, दोनों अच्छे हैं, बाजीराम का नहीं देखा। ओके देखो सर। मेन मेन इशू क्या होता है ना, टेक्निकलिटीज का इशू है कि कॉम्प्लेक्स आंसर कर देते हैं हम लोग। जब हम हम्म कोई बुक में ना, बुकिश लैंग्वेज होता है, एकेडमिक लैंग्वेज है, हम कई लोग क्या करते हैं उसी लैंग्वेज को ना रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे ना टेक्निकलिटीज आ जाता है, तो उससे ना प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, हर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है
उसका अगर आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग है एंड उससे रिलेटेड उसके एस्पेक्ट या उसके जितने डायमेंशंस हो सकते हैं वो सही है। इम्पोर्टेंट हमको है ना, वो जानना जरूरी है। अगर एक बार उस पर कमांड हो गया तो क्वेश्चन कहीं से पूछे, है ना, आपके पास सारे डायमेंशंस एक बार, अगर एनपीए एनपीएम है, कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेक्स्ट क्या है, उसके सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस, क्रिटिसिज्म, उसके पोस्ट डेवलपमेंट्स क्या है, अगर एक होलिस्टिक पिक्चर अगर हर टॉपिक का आपके पास है और उसका शॉर्ट नोट, जैसे शाहनवाज सर ने बताया कि आपको एकदम हर चैप्टर पे, हर टॉपिक पे लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए और उसी कंटेंट को यूज करके आप बेस्ट आंसर लिख सकते हैं। इंस्टीड ऑफ रीडिंग मल्टीपल बुक्स, हमको बस छोटा सोर्स को लिमिट करना है, मल्टीपल टाइम्स उसको रिफर करना है और आंसर शीट्स में उसको, जैसे एक्टिव रिकॉल का स्ट्रेटजी सर ने शुरू में बताया कि आप जब भी पढ़ाई करते हैं, रीड द टॉपिक एंड देन टेक अ व्हाइट शीट एंड ट्राई टू रीराइट, रिकॉल ऑल द पॉइंट्स दैट यू हैव, है ना। उससे करने से क्या होगा, आपका कमांड आ जाएगा और यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग द थिंग्स कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है तो कहाँ कहाँ क्या दिख रहा है, यू रिलेट इट, है ना। तो वो सारी डिफिकल्टीज है ना बुक में, अगर आउट ऑफ इंटरेस्ट यू कैन रीड इट, बट लेकिन क्या है कि अपने को उतना रिक्वायरमेंट है ना, स्कॉलर्स वी डोंट हैव टू बिकम स्कॉलर्स, है ना। तो लिमिट करना है, सोर्स को लिमिट करना है। प्रिंस भाई वो 9 बज गया, मुझे कहीं जाना है, अच्छा, मैं नेक्स्ट हाँ टाइम फिर से ऐड कर लूंगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो फिर कर, अभी क्या है ठीक कि है, बस, सबको बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है। ओके ठीक है, सर, थैंक यू, थैंक यू। बाय। हाँ, और कोई डाउट है ना, अदर्स कैन आस्क। ऐसे में कोर्स का एक जस्ट है ना, कल है ना, ये बोल रहे थे कि जो अपना कोर्स का जो रिलेटेड क्वेरीज है, जैसे कोर्स में हम लोग किस प्रकार का प्लान है, वो मैंने टेलीग्राम पेज पे, चैनल पे से सब्सक्राइब कर दिया है। उस पे ना सब्सक्रिप्शन जो लोग ले रखा है टेलीग्राम पेज पे, तो वहां पे मैंने शेड्यूल डाला है कि हम लोग कल से जो चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हैं, कि जस्ट आई विल शेयर द स्क्रीन, है ना, एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको ग्लिम्स कराता हूँ कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। जैसे चैप्टर 1 से हम शुरू करेंगे, तो चैप्टर 1 से लेकर हम हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, जैसे मान लो चैप्टर 1 के जितने टॉपिक, सब टॉपिक्स दिया हुआ है, तो हम लोग का जो टारगेट होगा, जो शाहनवाज सर ने बताया, हमने जो हम लोग मिलके जो प्लान किए कि जितने टॉपिक के इंपॉर्टेंट रेलेवेंट कंटेंट है, नोट्स में बल्कियर हो जाता है, कई चीजें है ना, रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेस होता है, एकेडमिक पर्सपेक्टिव से दिया जाता है। हम क्या करेंगे, हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट कंटेंट है उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर जो कई सारे टेस्ट में पूछे गए 1-2 साल के अंदर, उन सारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को, चाहे अंसारी सर है या पवन सर के नोट्स टेस्ट सीरीज है, उन क्वेश्चंस को, जो कंसेप्ट को क्लेरिफाई करे, है ना, उसके एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करे, ताकि यू बिकम मास्टर इन दैट टॉपिक। तो हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है कि हर चैप्टर को एक बार गो थ्रू करना है, ब्रीफली गो थ्रू करेंगे, कीपिंग इन माइंड कि क्या रिलेवेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फिर ध्रुव सर जो है वो आपको पीवाईक्यू का पिछले 5 साल के, है ना, क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके अलावा भी जो हम लोग क्लासेस लेंगे, उस क्लासेस में भी पिछले है ना 5 से 10 साल के जितने क्वेश्चंस है जो उस टॉपिक पे पूछा गया है, जैसे ही कंसेप्ट डिस्कस होगा, हम उसको कहेंगे, मतलब आपको दिखाएंगे किस प्रकार से हाउ दोज क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रेम्ड आउट ऑफ दोज कंसेप्ट्स, है ना। और जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज, क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक लैंग्वेज होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक लैंग्वेज है, तो यू हैव टू कैच दैट लैंग्वेज, है ना। तो वो क्या होगा, वो रेपिटेटिव, एक तो कंटेंट को लिमिट करना है, शॉर्टेन करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है ना। गोल्डन सीट्स का एक कंसेप्ट हम लोग नॉर्मली शेयर करते हैं बाकी एस्पिरेंट्स से, कि एक सीट में आपके जितने, जैसे मान लो एक थिंकर तैयार करना है, उस थिंकर का जो कंटेक्स्ट है, कंटेंट है, कंट्रीब्यूशन है, उसका क्रिटिसिज्म है और रेलेवेंस क्या है, तो इस प्रकार के एक जगह आपके पास एक सीट में वो अवेलेबल होना चाहिए, ताकि अगर किसी एस्पेक्ट से क्वेश्चन क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से उसको ना रिकॉल भी कर सकते हैं और उसको आंसर में डाल भी सकते हैं। नोट्स में क्या होता है, 4-5 पेज में है तो रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है, प्रैक्टिस। तो हम लोग का यही टारगेट है कि ये है कि दिसंबर 30 तारीख तक या मैक्सिमम मिड जैन तक, मिड 15 जनवरी तक हम लोग पूरा कोर्स को कंप्लीट करने का प्लान है। इसमें आपके जितने कोर्स के चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स, रिलेटेड टेस्ट सीरीज हो गए और पीवाईक्यू क्वेश्चंस, है ना। इसमें हम लोग कुछ आंसर राइटिंग सेशंस भी बीच में रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो कल से हम लोग का प्रॉपर जो ना प्रॉपर सेशंस जो है रनिंग जो होगा, वो कल से स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग डिटेल, माइक्रो डिटेल हम लोग कल शेयर करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट है नो या सर। एनीवन? या
सर एक क्वेश्चन पूछना था, ये कोर्स के लिए ऑलरेडी प्रीवियसली कुछ कोर्स किया हुआ होना जरूरी है या लाइक इज इट फॉर हाँ, एवरीबॉडी के लिए सर? या इट इज नॉर्मली इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि बेसिक एक वन रीडिंग एटलीस्ट होना चाहिए, चाहे सेल्फ हो सकता है या कि यू माइट हैव टेकन एनी कोचिंग और यू हैव डन योरसेल्फ, एंड एटलीस्ट वन रीडिंग, सो दैट क्योंकि थिंग्स विल बी लिटिल बिट फास्टर, है ना, so that if you have at least done read the books, yeah, referred any note at least once, so it will be easier. But in case if you are having foundational problem है, तो अलग से भी हम लोग जैसे कुछ जो अगर doubts होते हैं we will take up that doubt, है ना. तो do you have some idea about the chapters topics? जी सर. हाँ, तो आप एटलीस्ट वंस यू माइट हैव गॉन थ्रू द सिलेबस, है ना, टॉपिक्स को, तो विल आल्सो मेक यू गो थ्रू द ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. तो चैप्टर वाइज जब थरो रिवीजन करेंगे तो आप ना वी विल बी कीपिंग एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स हर सेशन का, 5 से 10 मिनट, है ना, एक रिकॉल सेशन रखेंगे जस्ट टू मेक यू रिकॉल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट या ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ दैट टॉपिक. उसको हम लोग एक बार जस्ट रिकॉल करेंगे ताकि ना you have to just go through it, and उसके बाद हम उस पे एनालिटिकल पार्ट जो जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो एनालिसिस रिक्वायर्ड है हर चैप्टर पे, वो पार्ट हम लोग करेंगे. ठीक है, और कोई डाउट? या और कोई सब्जेक्ट से या कोर्स से रिलेटेड कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. अभी जो है आज जो सेशन हुआ एक ओरिएंटेशन सेशन था, कल हम लोग का एक प्रॉपर क्लास टाइप का सेशन हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, और वेडनेसडे को 11 बजे पीवाईक्यू सेशन ध्रुव सर लेंगे. तो एक आप ये 3 क्लास आप सबके लिए ओपन है ना, ऑल ऑफ यू कैन कम एंड ज्वाइन, एंड है ना. उसके बाद एक क्या हम लोग का स्ट्रेटजी होगा, चैप्टर वाइज क्या प्लान है, पीवाईक्यू किस प्रकार एनालाइज करेंगे, वो सारी चीजें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक, तो ये पहले 3-4 सेशन आप आसान, है ना, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, देयर इज नो इशू. ठीक है, इफ देयर आर नो डाउट्स, या सर प्लीज. पीवाईक्यू क्लास का टाइमिंग क्या होगा और कितने डेज में होंगी वो क्लास? नॉर्मली 8 to 10 हम लोग का टास्क है कि मतलब 8 से 10 क्लास में हम लोग रैप अप करेंगे पीवाईक्यूज और प्लस क्वेश्चन आंसर सेशन जो है. मतलब रेगुलर नॉर्मली 8 to 10 ही? हाँ 8 to 10 10 की? 8 to 10 रहेगा, लेकिन जब पीवाईक्यू जैसे है ना कुछ सेशंस दिन में कराएंगे हम लोग 11 से 1 के बीच में, वो इन्फॉर्म कर देंगे. हाँ, वो टेलीग्राम वो या उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी हम लोग अवेलेबल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है सर. ठीक सर, जो दिन में क्लासेस होंगे उनका रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल हो पाएगा? हाँ वो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं. ठीक सर ये पीवाईक्यूज और ये वाले जो क्लास है उसका ऐसा कुछ शेड्यूल है क्या सर? क्योंकि आपके इसमें वो हाँ, अलग जो अलग शेड्यूल, सेपरेट. हाँ वो शेड्यूल जो हमने शेयर किया ना, उसमें चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आंसर जो पिछले 10 साल में पूछे गए, जो हम कंसेप्ट के साथ इंटरलिंक करेंगे, उसको हम तो क्लास रेगुलर 8 से 10 वाले सेशन में चलेगा, लेकिन जो एलोबरेटिव डिस्कशन जो है हर ईयर हो सकता है या चैप्टर वाइज हो, वो एलोबरेटिव कुछ क्लासेस, स्पेशलाइज क्लासेस हम लोग चाह रहे हैं कि 4-5 सेशन उस पर भी हो, कंप्लीटली पूरा पेपर उठा के हम लोग सॉल्व कराएं. वो अलग से है ना, ध्रुव सर ले लेंगे 4-5. या आई थिंक और कोई डाउट है या फिर है ना कल मिलते हैं हम लोग. या दूसरे एनीथिंग? नहीं सर. ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सर. हाँ, कल हम लोग और भी डिटेल शेयर करेंगे, और बाकी सर का जो ओपिनियन या जब सर ने जो फीडबैक शेयर किया है तो थिंक इट ओवर, है ना, क्योंकि इन्होंने लेटेस्ट में हाईएस्ट स्कोर किया, तो देयर इज समथिंग, है ना, ऑल ऑफ अस अननेसेसरी हम लोग को भागना नहीं है, लिमिट करना, और उसी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. हाँ, हम उसी को यूज करते मैक्स, है ना, मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे. ठीक है सर आज थोड़ा टाइम कम दे पाए थे सर, थोड़ा सर नेक्स्ट टाइम मतलब एक बार फिर से. हाँ वो चैप्टर वाइज जब होगा तो प्रॉपर एकदम डिटेल में डिस्कस होगा, तो वो हम लोग प्लान कर रहे हैं. आज तो ओरिएंटेशन था तो हम लोग 1 घंटे का ही प्लान किए थे, तो Okay. हाँ आज का सेशन छोटा ही प्लान किया. ठीक है, ठीक है सर. चलो, Okay, sir. ओके, Thank you. थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, लेट अस मीट टुमारो. ओके, थैंक यू.